गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जब हम लोग एक्सेल में काम करते हैं तो फाइंड रिप्लेस का काफी यूज होता है। बट क्या आपने मल्टीपल फाइंड रिप्लेस किया है? मतलब फाइंड रिप्लेस वो भी मल्टीपल टेक्स्ट, ए को बी से रिप्लेस करना है, सी को डी से रिप्लेस करना है, ऑल टुगेदर इन ए सिंगल गो। नहीं किया होगा। व्हाई? बिकॉज एक्सेल में ऐसा कोई प्री डिफाइंड या डिफॉल्ट ऑप्शन है ही नहीं। आज हम देखेंगे कि किस तरह से एक मैजिकल वे से, मैजिकल मेथड से we can automate the entire task and we are going to create a function that will find replace multiple text. wow! तो चलिए सिस्टम पे चलते हैं और देखते हैं द कंप्लीट प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप कि किस तरीके से हम फाइंड एंड रिप्लेस का एक ऑटोमेशन क्रिएट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, दिस इज द फाइल जहां पर मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया है। We have a set of data that is the original data. अभी मेरा ये original data है। Now I have to find these words. ये words अगर इस data में है तो corresponding replace करना है इस word से। Now as we are going to create a function, हम लोग एक function create कर रहे हैं, so all the things are dynamic. हम कोई भी data को किसी भी data से replace कर सकते हैं और कहीं भी कर सकते हैं। Now let us create a function something like this, which is subs substitute multi। ऐसा फंक्शन बनाते हैं। एंड इन दिस फंक्शन वी हैव टू सिलेक्ट सिंपल डेटा। मुझे यहां ढूंढना है। दिस टेक्स्ट इज माई ओरिजिनल टेक्स्ट। नाउ आई हैव टू चेक फॉर दिस एरिया। ये रेंज में जो भी मिल जाए, लेट अस फिक्स दिस और रिप्लेस करना है इस एरिया से, कॉरस्पॉन्डिंग दिस एरिया से। Perfect. Bracket close, enter. Now based upon this formula it should replace multiple text. यहां से find करेगा, corresponding यहां से replace करेगा in this original data, and whenever I am going to drag this formula automatically the magic should happen. So let us see कि किस तरह से एक simple सा function create कर सकते हैं that can perform complex things. Let me show you. So for that let us go with right click, view code. Now this is my VB editor. यहां पर करना है मुझे। So let us right click, insert module. Now we are going to create the function with the same name, which is substitute multi. So let us copy the same function name. ये function के नाम को मैं copy कर लेता हूं जो मुझे create करना है। So function this one, और यहां पर क्या input लूंगा? मुझे 3 input लेना है। एक तो हो गया text, string. Now the second part is the find range, जहां पर मुझे ढूंढना है। So find range as range, and the third one is the replace range as range. Perfect. Enter. Now this is the function that we have created. अब यहां पर मुझे रिजल्ट पॉपुलेट करना है, फाइनल रिजल्ट चाहिए जो वहां पर जाना है। Now for this I have to prepare some intermediate variables. So dim rng as range. ये मैंने क्यों लिया है? Because I have to loop through these records. Means यहां पर मेरे पास जितने भी रिकॉर्ड्स है एक एक करके लूप में जाना है, so that I can replace corresponding data. And we will define more variables. जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, अगर कुछ जरूरत पड़ेगी we'll define more variables. तो सबसे पहले मुझे ये चेक करना है कि जो find range का number of rows है should be exactly equals to the number of rows for the replace range. Find range और replace range का जो number of rows है that should be same. Even column भी same होना चाहिए, एक एक column होना चाहिए. So that should be the first criteria. अब अगर ये condition में fulfill नहीं करता है कि number of rows या columns, then will not display the result. हम फिर उस केस में error represent कर देंगे, error display करा देंगे. Let me show you. So if find range dot columns dot count is not equals to replace range dot columns dot count, ये तो एक कंडीशन हो गया। दिस इज माई फर्स्ट वन। अगर ये मैच नहीं करता है या find range dot rows dot count
is not equals to replace range dot rows dot count bracket close and we'll also put a bracket here. Then means अगर यूजर ने गलत रेंज सिलेक्ट किया, नंबर ऑफ रोज या नंबर ऑफ कॉलम्स, देन वी विल रिटर्न एन एरर. नाउ फॉर दैट वी विल जस्ट रिटर्न द रिजल्ट ऑफ द फंक्शन. फंक्शन का रिजल्ट ही एरर रिटर्न करना है. सो आई विल गो विथ दिस वन इज इक्वल्स टू, हम ऐसे कर सकते हैं NA या REF ऐसे कर सकते हैं, बट विल return the exact error. Now there is a command, there is a syntax in VBA that we can return any error. तो CVERR कौन सा एरर रिटर्न करना है? इट्स शोइंग कन्वर्ट एरर. कौन सा एरर रिटर्न करना है? आई सो XLERRNA हैश NA रिटर्न करना. सिंपल सा. अगर वैल्यू नहीं मिल रहा तो हैश NA ब्रैकेट क्लोज एंटर. वाओ. सो एग्जिट फंक्शन एंड देन एंड इफ. मतलब यहां पर सबसे पहला मैं चेक करूंगा, अगर यहां पर फॉल हो जाता है देन इट शुड एग्जिट द फंक्शन एंड डिस्प्ले द रिजल्ट एज हैश NA. परफेक्ट. नाउ अब आते हम नेक्स्ट स्टेप के लिए. सो लेट अस स्टार्ट विथ ए लूप. सो फॉर ईच RNG इन फाइंड रेंज. नेक्स्ट ये क्या है? यहां पर मैंने एक लूप चला दिया है क्योंकि मुझे एक एक सेल में जाना और उसके वर्ड को कैप्चर करके वी हैव टू रिप्लेस विथ दिस टेक्स्ट. लेट अस सी. लेट अस टेक वन मोर वेरिएबल dim find text एज स्ट्रिंग. अब फाइंड टेक्स्ट क्या है? जिसे मुझे ढूंढना है. सो फाइंड टेक्स्ट इज इक्वल्स टू RNG डॉट वैल्यू. RNG का जो वैल्यू है वही है फाइंड टेक्स्ट. मीन्स दिस वन, क्विक, ब्राउन, फॉक्स, लाइक दिस. अब रिप्लेस किससे करना है? रिप्लेस करना है इस रेंज में मुझे ये वैल्यू चाहिए, इसी रेंज में मुझे ये वैल्यू चाहिए. तो एक एक वैल्यू उठाना है कॉरस्पॉन्डिंग डेटा का. लेट अस टेक अनदर वेरिएबल रिप्लेस टेक्स्ट. लेट अस मेक दिस एज कैपिटल. इसको सेम रखने के लिए एज स्ट्रिंग. नाउ रिप्लेस टेक्स्ट. रिप्लेस टेक्स्ट इज इक्वल्स टू जो मेरा रेंज है, रिप्लेस रेंज. रिप्लेस रेंज इज दिस वन. अगर मैं इस रेंज में 1,1 करूं, ध्यान दीजिएगा, इस रेंज में 1,1 मीन्स स्लो, 2,1 मीन्स व्हाइट, 3,1 मीन्स रैबिट. मतलब किसी रेंज में अगर हम ब्रैकेट में रो कॉमा कॉलम पास कराते हैं सो इट रेफर्स टू ए रेंज. तो इस रेंज में दिस इज 1,1, दिस इज 2,1. कॉलम तो सेम है, रो मेरा चेंज हो रहा है. 3,1, 4,1, 5,1 like this. So for that I'll take one more variable which is dim I as integer, क्योंकि ये बार बार चेंज हो रहा है मेरा. So यहां पर मैं क्या करूंगा? I equals to I plus 1. हर बार एक I चेंज हो. So replace text is equals to replace range और यहां पर मैं क्या करूंगा? I,1 डॉट वैल्यू. परफेक्ट. ये कर दिया. अब मुझे क्या करना है? आई वॉन्टेड टू हैव ए टेक्स्ट जो रिप्लेस करके फाइनल रिजल्ट आ रहा है. क्योंकि एक चीज ध्यान दीजिएगा कि एक ही टेक्स्ट में मल्टीपल फाइंड होगा और मल्टीपल रिप्लेस होगा. क्विक फाइंड करेगा, स्लो से रिप्लेस होगा. ब्राउन फाइंड करेगा, व्हाइट से रिप्लेस होगा. तो मुझे एक और टेम्पररी टेक्स्ट लेना है जो बार बार फाइंड रिप्लेस करके एक फाइनल रिजल्ट देगा. सो लेट अस define one more variable dim temp text as string. Now the magic is going to happen right now. अब मुझे क्या करना है? temp text is equals to replace. replace यूज करना है. ब्रैकेट स्टार्ट. यहां पर पूछा जा रहा है कि किसको फाइंड करना है, क्योंकि मैंने बताया कि एक टेक्स्ट में मल्टीपल चीज को फाइंड रिप्लेस करना, विच इज द टेम्प टेक्स्ट. टेम्प टेक्स्ट को ही फाइंड करना है. और फाइंड क्या करना है? विच इज फाइंड टेक्स्ट, जो हमने अभी निकाला यहां पर, दिस वन फाइंड टेक्स्ट. और रिप्लेस किससे करना है? रिप्लेस इज रिप्लेस टेक्स्ट. नाउ यहां पर दिस इज
बाय डिफॉल्ट 1 से होगा। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज मुझे केस सेंसिटिव कंपैरिजन नहीं करना है, स्मॉल कैपिटल सबको टेक केयर करना है। सो विल गो विथ VB टेक्स्ट कंपेयर, नहीं तो बाय डिफॉल्ट ये बाइनरी कंपेयर होता है विच इज केस सेंसिटिव। ब्रैकेट क्लोज दिस वन। नाउ एक चीज समझना पड़ेगा, यहां पर टेम्प टेक्स्ट तो मैंने लिया हुआ है बट टेम्प टेक्स्ट में अभी कुछ भी नहीं है फाइंड करने के लिए या रिप्लेस करने के लिए। सो मैं क्या करूंगा, आई विल गो विथ टेम्प टेक्स्ट इक्वल्स टू दिस पैरामीटर टेक्स्ट, मतलब जिसको चेक करना है, जिस सेल में चेक करना है, विच इज B3। B3 का मतलब दिस वन जो ओरिजिनल मेरा डेटा है। अब ओरिजिनल टेक्स्ट को हमने क्या रख लिया, अभी तक हमने कहीं भी प्रोसेस नहीं किया था, अब प्रोसेस हो गया बिकॉज वी हैव टेकन केयर ऑफ दिस ओरिजिनल टेक्स्ट। नाउ लेट अस सी व्हाट इज द रिजल्ट। अब जो फाइनल रिजल्ट आएगा सब्स्टिट्यूट मल्टी का, वो क्या आना चाहिए, दैट इज द यस टेम्प टेक्स्ट। लेट अस सी, एक बार देखते वेदर दिस इज हैपनिंग और नॉट। हमने बना लिया, नाउ लेट अस रन दिस। अब रन कहां से करेंगे, बताइए बताइए, यहां से? नो, बिकॉज दिस इज द फंक्शन। फंक्शन को रन करने की जरूरत नहीं पड़ती है, सब रूटीन को रन करना पड़ता है। फंक्शन को तो सिंपल वे में आपको सिर्फ यूज ही करना है। एंटर। वाओ, द स्लो व्हाइट रैबिट जंप्स ओवर द क्विक माउस। आई लव जंक फूड, आई हेट जंक फूड्स। वाओ, नाउ दिस फंक्शन इज ऑसम। अब क्या हो गया, दिस फॉर्मूला इज वाओ, क्योंकि फंक्शन को रिप्लेस कर दिया है फॉर्मूला से एंड ऑसम को रिप्लेस कर दिया है वाओ से। अब यहां पर अगर मैं कैपिटल भी करता हूं तब भी ये काम कर जाएगा। ऑसम ऑसम वाओ। एंड यू कैन रेफर टू एनी रेंज, जरूरी नहीं कि आपको यहीं पर रखना, आप किसी शीट पे भी जाके रख सकते हैं, इट विल ऑटोमेटिकली टेक केयर। ऑसम। नाउ लेट अस डू सम R&D, क्योंकि R&D करना अच्छा लगता है ना। एक बार देखते हैं ना R&D करके। हेलो एवरीबॉडी, और इसको मुझे रिप्लेस करना है, हेलो को रिप्लेस करना है मुझे हाई से, एंड एवरीबॉडी को रिप्लेस करना है समबडी से। लेट अस सी, एक बार एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं ना क्या हो रहा है। इंक्रीज दिस वन, सो वी हैव इंक्रीज दिस, जैसे हम लोग नॉर्मल फॉर्मूला में भी करते हैं। नाउ लेट अस ड्रैग दिस वन, और एक बार देखते हैं ना मैजिक। हाई समबडी, वाओ, हेलो एवरीबॉडी से हाई समबडी हो गया। सो बल्क फाइंड रिप्लेस, बल्क फाइंड रिप्लेस बोल सकते हो, मल्टीपल फाइंड रिप्लेस बोल सकते हो। अब एक बार इसको गलत सिलेक्ट करके देखते हैं ना, जो हमारा एरर रिटर्न आएगा। सो व्हाट आई विल डू, ये मेरा जो फाइंड वाला रेंज है वो ज्यादा है, रिप्लेस वाला रेंज को कम रख दिया है। ऑसम #NA, वाओ, ग्रेट। So friends, I hope you enjoyed this tutorial and I'm sure you are going to implement this trick, implement this concept in your upcoming project. So friends, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये ट्यूटोरियल कैसा लगा और आप इसे किस जगह पे यूज करना चाहते हैं। Now you can download this file from the link given in the description box. And friends, very important, अगर अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, then welcome to the family. अभी सब्सक्राइब कर दीजिए and please क्लिक ऑन द बेल बटन, उसको ऑल कर दीजिएगा ताकि मेरे जितने भी ट्यूटोरियल्स आएंगे आपको डायरेक्ट नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड बहुत ही जल्द मिलता हूं एक और नए ट्यूटोरियल के साथ, एक और नए एक्साइटमेंट के साथ, एक और नए लर्निंग के साथ। टिल देन, टेक केयर, बाय एंड हैव ए ग्रेट डे। दिस इज विवेकानंद सिन्हा साइनिंग ऑफ।